हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर सेकंड था लास्ट स्प्रिंग का, आज सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोग साहब की पूरी कहानी की समरी बनाकर उसका हिंदी और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी कर दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके दूसरे पार्ट जो मुकेश का पार्ट है, भाग है, उसके बारे में पूरी कहानी इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी समरी समझेंगे, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई दे और क्वेश्चन आंसर कुछ भी आए आपसे छूट ना पाए। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के हम इस टॉपिक से जुड़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी कहानी को इंग्लिश में सुनेंगे और इसके बाद फिर इसको हिंदी में समझेंगे। पहला है कि आई वांट टू सॉरी रिपीट हो गया, आई वांट टू ड्राइव ए कार। आगे लिखा है कि लॉगिंग ऑफ मुकेश। इसके टोटल 7 पैराग्राफ में एक बार देख लेते हैं। टोटल 7 पैराग्राफ होना चाहिए। टोटल आपका 7 पैराग्राफ है। 7 पैराग्राफ में पूरी कहानी बड़े प्यार से समझाई गई है। तो चलिए पहला पैराग्राफ है कि सॉरी पहला पैराग्राफ है कि लॉगिंग ऑफ मुकेश। The author comes across Mukesh in Firozabad. His family is engaged in bangle making, but Mukesh insists on being his own master. I will a motor mechanic, he announced. I will learn to drive a car, he says. Workers in bangles manufacturing. Firozabad is the famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. Familiars have spent generations work around furnace, welding glass, making bangles of women. None of them know that it is illegal for children like Mukesh to work in the glass furnace with high temperature in Dignicel without air and light. They slow their day-night hours, often losing the brightness of their eyes. If the law enforced, it could get Mukesh and 20,000 children out of the hot furnace. Mukesh house. Mukesh took the writer to his house. They went through stinking lane choked with garbage. Familiar of Bangi's marks live there. Their uses had crumbling walls and bubbly doors. They entered Mukesh's house, which was like any other house in the lane. A frail young woman was cooking meals on a firewood stove. Her eyes were filled with smoke. Her eyes. She regarded the Arthur with a smile. She was the wife Mukesh's elder brother. She was respected as the daughter-in-law of the family. Mukesh's fathers also came in. The daughter-in-law covered her face with her veil as the custom demanded. Mukesh's grandmother. Mukesh's father was old and weak. Five had lost their eyes working on furnace and polishing bangles. He had worked hard all his life, but he could not afford to send his two sons to school. He could only teach them the art of making bangles. He had built the house but could not repair it. Mukesh's grandmother expressed her belief in destiny. She said that on account of their karma deeds, they were born in the Bengal maker caste. It was their destiny of suffer
No man could change what was ordinarily by fate. In fact, their belief was shared by all. Savita and her parents. Savita, a young girl in drab pink dress, Sita sits alongside any elder woman. She shouldering pieces of glass. Her hands moves mechanically like the tongues of the machine. Perhaps she does not know the sensitivity of bangles that send. She helped me make the old woman beside her has not enjoyed very one full meal in the entire lifetime. Her husband is an old man with flowing beard. He knows nothing except bungles. He has made a house for the family to live in. He has a roof over his head. Bangles of manufacturing and blindness. The author could see bangles everywhere she was. She saw boys and girls sitting with the parents before cranking up oil lamps. They welded pieces of the colored class they had learnt. Their eyes got used to be dark and they lost eyesight before they were adult. At home, familiar worked hard all day before furnace with his high temperature and the operation of bangles making casual blindness. लास्ट स्टेंजा है इंग्लिश का vicious circle. Generous generation after generation families of bangles maker have been engaged in making bangles. They live in poverty, they work hard and try in poverty. Nothing has changed. With the passage of time, they find themselves in the clothes of middlemen and moneylender. The police and the administration does not help them. If they try to put out of the vicious circle, they are in trouble. The police beat them and put in the jail. चलिए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। मैं कार चलाना चाहता हूँ, मुकेश की लालसा। मुकेश की मुलाकात फिरोजाबाद में मुकेश से होती है। सॉरी, लेखक की मुलाकात फिरोजाबाद में मुकेश से होती है। उनका परिवार चूड़ियाँ बनाने का काम करता है, लेकिन मुकेश अपनी मर्जी से मालिक बनने की जिद पर अड़ा रहता है। वह घोषणा करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं कार चलाना सीखूंगा। चूड़ी निर्माण में लगे मजदूर। फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। परिवारों ने पीढ़ियों से भट्ठिया पर काम किया, कांच की वेल्डिंग की और महिलाओं की चूड़ी बनाई। उनमें से किसी को भी पता नहीं कि मुकेश जैसे बच्चों का कांच की भट्ठियों में तेज़ तापमान पर बिना हवा और रोशनी वाली गंदी कोठरियों में काम करना गैर कानूनी है। वे दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, जिससे अक्सर उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। अगर कानून लागू हो जाए तो मुकेश और उससे 20,000 बच्चे तपती भट्टी से बाहर आ जाएंगे। तीसरा है मुकेश का घर। मुकेश लेखक को अपने घर ले गए। वे कूड़े की भरी बदबूदार गलियों से गुजरे। वहाँ भंगी बनने वाले परिवार रहते थे। उनमें उनके घरों की दीवारें टूट हुई थी, दरवाजे हिल रहे थे। वे मुकेश के घर में दाखिल हुए, जो गली के किसी भी दूसरे घर जैसा ही था। एक कमज़ोर युवती लड़की के चूल्हे पर खाना पका रही थी। उसकी आंखों से धुएं से भरी थी। उसने मुस्कुराते हुए लेखक का अभिवादन किया। वह मुकेश की बड़ी भाई की पत्नी है। परिवार में बहू और के तौर पर उसका सम्मान किया जाता है। मुकेश के पिता भी अंदर आए। बहू ने रिवाज के मुताबिक अपने चेहरा घूंघट से ढक लिया।
मुकेश के पिता और दादाजी। मुकेश का पिता बड़ा कमज़ोर था। भट्ठियों पर काम करती चूड़ियों पर चमकाते हुए उसकी आंखें चली गई थी। उसने जीवन भर कड़ी मेहनत की थी, लेकिन वह अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने की में असमर्थ था। वह उन्हें केवल चूड़ियाँ बनाने की कला ही सिखा सका। उन्होंने उनके घर तो बनाया था उसने घर तो बनाया था, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं कर सका। मुकेश की दादी भाग्य में भी विश्वास रखती। उन्होंने कहा कि अपने कर्मों के कारण ही लोग चूड़ी बनाने वाली जाति में पैदा हुए हैं। दुख सहना ही उनकी नियमित भाग्य से भाग ने जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। वास्तव में उनकी यह मान्यता सभी की थी। सविता और उसके माता पिता। गुलाबी रंग के एक नीरस पोशाक पहने एक छोटी सविता एक बुजुर्ग महिला के बगल में बैठी है। वह कांच के टुकड़ों पर टाँके लगा रही है। उनमें उसके हाथ मशीन के चिमटे की तरह यांत्रिक चल रहे हैं। शायद उसने उन चूड़ियों की पवित्रता का अंदाजा नहीं है जिन्हें जिन्हें बनाने में वो मदद करती है। उनके बगल में बैठी बुजुर्ग महिला अपने पूरी जीवन में एक बार ही भरपेट खाना खाया है। उसका पति एक बड़ा आदमी है जिसकी दाढ़ी लंबी है और चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं करता। उसके परिवार में के रहने के लिए एक घर बनाया है। उसके सिर पर छत है। चूड़ियाँ बनाना और अंधापन। लेखक को हर जगह चूड़ियाँ दिखाई दे रही थी। उन्होंने लड़के लड़कियों को अपने माता पिता के साथ टिमटिमाते तेल के दिए के सामने बैठे थे। वे रंगीन कांच के टुकड़े में वेल्ड कर रहे थे जो उन्होंने सीखा था। उनकी आंखें रंग गहरा होने की आदत हो गई थी और वयस्क होने से पहले ही उनकी आंखें की रोशनी चली गई थी। घर पर परिवार दिन भर तेज गर्मी वाली भट्टियों के सामने कड़ी मेहनत करते थे। चूड़ियाँ बनाने की सभी प्रक्रिया अंधेपन का कारण बनती है। अगला पास देखा दूध चक्र है। बूढ़ी चूड़ी बनाने वाले परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी चूड़ियाँ बनाने के काम कर में लग रहती है। वे गरीबी में जीते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं। समय के साथ कुछ भी नहीं बदलता। वे खुद को बिचौलिए और साहूकार के चंगुल में पाते हैं। पुलिस और प्रशासन उनकी मदद नहीं करती। अगर वे इस दुष्कर्म से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मुसीबत में डाल दिया जाता है। पुलिस उन्हें पीटती है और जेल में डाल देती है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10-12 के सेकेंड पार्ट मुकेश की पूरी कहानी समझ लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी तरह बनाई गई वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं किसी ऐसे शानदार वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।